अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to discuss problem number 14-8. In 14-8 they have given you the earning per share, and later on they have given you the instruction to solve requirement A, B, C and D. In each requirement they have different dividend policies, and what you have to do, you just have to follow them. What so first of all, what you have to do is to make a table and then the earning per share. Fine. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 and then 2012. Fine. Then they have given you the earning per share 0.44, $1, $0.60, $1.05, negative $0.85, $1.20, $1.56 and $1.40. Fine. In requirement number A they are saying you have to pay 50% of your earning in all year. Payout percentage is 50%. Whatever the earning per share is, you have to pay 50% of it as your dividend with positive earning. Means in the year 2009, as you can see, we have a negative earning of 0.85. In this year there will be no dividend. Fine. And in the rest of the years you just have to pay 50% of your earning as a dividend, so it will be 0.22. Then you have $1 dividend, the 50% of it will be 0.50, 0.30, 0.53. There will be no dividend in 2009, and in 2006 you will have 0.60, 0.78 and 0.70. Fine. That was the requirement number A. In requirement number B they are saying pay 0.50 per share dividend increasing to. A thing that is very much important for you to understand is that they are using the word increase to $0.60. So the thing that you should try to understand, that in problem number 14-7 they use the word increasing by. Increasing by and increase to are two different things. Increasing by means every year you just have to increase $0.10, but increase to means you have to pay $0.60. There is no increasing by 0.60, 0.60. Increase to means if the requirement or the instruction satisfied, you will pay $0.60 per share dividend whenever earning per share rises to 0.90 per share for 2 consecutive years. You just have to check your earning per share, and if the earning per share is greater than 0.90 for 2 consecutive years, in that year you will have to pay $0.60 as a dividend. Fine. So what you have to do, you just have to compare your earning per share, and if there will be any sort of amount greater than 0.90 for 2 consecutive year, in that year you will have to pay $0.60 as a dividend. Fine. So we have $0.40 dividend, so you will have to pay $0.50 as your dividend. Then we have the value $1. Sir, it is greater than 0.90, but it isn't a 2 consecutive year. ये consecutive year नहीं है. $1 will be the amount, but that is not $1 is your earning per share, but the requirement of 2 consecutive year does not satisfy here, so it will again be 0.50. Then we have 0.60. It is not increasing or it is not greater than 0.90, so we have a $0.50 dividend. 1.05, again it is greater than $0.90, but it isn't a but it isn't a consecutive second year, so it will be 0.50. They have not instructed you that if your earning is negative, then there will be no dividend. So if even if it is creating or it is showing a negative $0.85 earning per share, you will have to pay $0.50. Now we have $1.20. It is greater than 0.90, but it isn't a consecutive year, so you will have to pay a $0.50 dividend. $1.56. Again, now what you have to do,
the 1.56 is greater than 0.90 and it's a consecutive year. So what you have to do, you will have to pay $0.60 dividend. Again 1.40 is a amount greater than 0.90 and it is a consecutive year. So what you have to do, you will have to pay $0.60. So that is the end of your requirement number B. In requirement number C, they are saying that you have to pay 0.50 per share except when the earning per share exceeds $1, in which case pay an extra dividend of $60% of earning above $1. The same activity that we performed in requirement number C of 14-7. वहाँ पे क्या बात हुई थी, वहाँ पे ये बात हुई थी कि $3 की जो उन्होंने अमाउंट दी थी उससे ज़्यादा जब अर्निंग आती थी तो जितनी अमाउंट $3 से ज़्यादा आती थी उसका 80% हम एक्स्ट्रा डिविडेंड देते थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि इन द ईयर इफ़ यू हैव द अर्निंग ग्रेटर देन $1 exceeds $1, so in which case pay an extra dividend of 60% of earning above $1 per share. जितनी अमाउंट $1 से ज़्यादा होगी उस अमाउंट का 60% एक्स्ट्रा डिविडेंड देंगे, वरना आपने कितना डिविडेंड देना है, $0.50 का। तो सिंपल सी हमारी कहानी। अब यहाँ पे चेक करना है कि $1, यहाँ पे सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में आपका $0.44 आ रहा है, $1 से कम है तो 0.50, $1 से अमाउंट एक्सीड नहीं करी, अगेन 0.50, 0.50 यानी 0.60 इजंट अमाउंट ग्रेटर देन $1 तो आपने $0.50 देना है। अच्छा, अब आते हैं $1.05 की। $1.05 में $0.05 जो है हमारी वो अमाउंट एक्सीडिंग $1, तो 0.05 का 60% हमने एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है। तो यहाँ पे 0.50 प्लस 0.05 का 60% हमने एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है, तो वो 0.3 आएगा, तो 0.03 आएगा, तो वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेगेटिव 0.85 है तो हम अगेन 0.50 डिविडेंड देंगे, बिकॉज दे हैव नॉट इंस्ट्रक्टेड यू डैट इफ़ देयर विल बी नेगेटिव अर्निंग नो डिविडेंड, तो चाहे ये नेगेटिव है आपने $0.50 डिविडेंड देना है। ठीक है। उसके बाद $1.20 में अमाउंट एक्सीडिंग $1 इस 0.20 उस अमाउंट का 60% डिविडेंड देना है, तो हमारा डिविडेंड कितना आएगा, 0.50 प्लस $0.20 का 60% एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देंगे। फिर 1.56 अमाउंट एक्सीडिंग $1 इज 0.56 उसका डिविडेंड 60% एक्स्ट्रा देना है, तो 0.50 प्लस 0.56 का 60% एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देना है। वो जो 1.40 $1 की सेटिस्फैक्शन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो यू जस्ट हैव टू पे 0.50 प्लस 0.40 का 60% आपने एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है। सो डैट इज़ द एंड ऑफ योर न्यूमेरिकल पार्ट नंबर सी। इन पार्ट नंबर डी व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग यू a policy, combine the policy described in part B and C. B and C की पॉलिसी को कंबाइन करें, यानी आप B को दोबारा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि पे 0.50 per share and increase to 0.60 per share whenever earning per share rises above 0.90 for 2 consecutive years. और C में क्या कहते हैं, 0.50 per share when earning exceeds $1 per share, in which case पे एन एक्स्ट्रा डिविडेंड ऑफ 60% ऑफ अर्निंग अबव $1। ठीक है। कहते हैं इन दोनों पॉलिसीज़ को कंबाइन करें। कंबाइन करने के बाद आपने क्या करना है, व्हेन द डिविडेंड इज़ रेज्ड इन पार्ट बी, जहाँ जहाँ डिविडेंड बी में रेज़ किया है, यानी यहाँ पे, और यहाँ पे बी में देखें तो डिविडेंड हमने किस किस साल में रेज़ किया है, 2011 में रेज़ किया था और 2012 में। यानी जो डी रिक्वायरमेंट में पहली बात उन्होंने किया है कि जहाँ जहाँ बी पार्ट में आपने when the dividend is raised in part B, raise the excess dividend base in part C from $1 to 1.10 per share। तो वहाँ पे आपने जो $1 की बेस आपने ली थी सी पार्ट में, उसे बढ़ा के $1.10 की बेस इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है कि हमने दोनों पॉलिसीज़ लेनी है बी और सी की। पहली बात करना क्या है कि बी पार्ट में जहाँ जहाँ आपने डिविडेंड बढ़ाया था उन जगहों पे सी पार्ट के अंदर उन जगहों में आपने रेज द एक्सेस डिविडेंड बेस इन पार्ट सी फ्रॉम $1 टू $1.10। $1.10 की बेस वो बढ़ा देना है।
ये सिंपल सी कहानी है, ये सिंपल सी बात है जो आपने अप्लाई कर देनी है। अच्छा, अब हम करते हैं कि ठीक है, कंबाइन पॉलिसीज़ बी एंड सी की कर ली, और जहाँ जहाँ हमने बी के अंदर डिविडेंड ज़्यादा दिया है वहाँ वहाँ हमने $1 की बेस को $1.10 पर लेकर जाना है। बी रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ा क्या था, हमने कहा था कि 0.50 पर शेयर डिविडेंड इंक्रीजेस टू 0.60 पर शेयर when the earning per share rises above $0.90। जब हमारी डिविडेंड की पॉलिसी $0.90 पर आई, $0.90 पर आई, वहाँ पे हम $0.60 डिविडेंड देंगे। और कहाँ पे लेंगे कि जहाँ पे बी के अंदर हमने अपनी पॉलिसी को वाकई 0.860 दिया था, तो हमने दो जगहों पे दिया था। ठीक है, हमने दो जगहों पे अपनी पॉलिसी को 0.60 की दी थी, मतलब 0.60 पे हमने ज़्यादा डिविडेंड दिया था। तो हमने यहाँ पे सिंपल सी बात क्या करनी है, सेम आपने सी को एज इट इज़ लेके चलना है 0.50, फिर वही वाली लॉजिक 0.50, फिर आपने वही लॉजिक 0.50, फिर आपने यही लॉजिक, इसका जो जवाब आएगा दैट इज़ 0.53, फिर आपने यही सेम लेके चलना है 0.50। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपने जो क्या कहते हैं उसे, इसकी जो अमाउंट आएगी ना आपकी, ये भी आपका वही आएगी जो ऊपर इस वाले का आंसर आएगा ना, इसका आंसर आपका आएगा 0.62 आपकी ये एज इट इज़ आ गई। अब हमारी एक्टिविटी असल में इस क्वेश्चन की शुरू हो रही है। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ बी पार्ट में आपने पॉलिसी बढ़ाई है, तो वो बढ़ाई थी हमने 2011 में और 2012 में। ठीक है, उन सालों में इसकी जो बेस आपकी थी वो $1 से बढ़ा के $1.10 कर दें। तो अब हमने क्या करना है, हमारी जो 1.10 से ऊपर अमाउंट कितनी नज़र आ रही है आपको, हमारी 1.10 से अबव अमाउंट आ रही है 0.46, यानी जहाँ पहले 1.56 हमने किया था सी पार्ट में कि $1 से ऊपर अमाउंट जो आ रही थी 0.56 हम ले रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यही जगहों पे करना क्या है, आपने 1.10 को बेस रखना है और 1.10 से अबव अमाउंट यहाँ पे कितनी आ रही है 0.46, उसका 60% आपने एक्स्ट्रा डिविडेंड देना। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, पहले हमने सी पार्ट में इसका क्या किया था 0.40 अबव अमाउंट $1 की थी और उसकी वैल्यू निकाल ली थी। अब आपने वैसे नहीं करना, अब आपने 0.40 की जगह 0.30 करना है, क्योंकि 1.40 से अबव 1.10 से अबव 1.40 में कितना है 0.30, उसका 60% आपने एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0.50 प्लस 0.46 अबव अमाउंट है 1.10 से, उसका 60% जब हम लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.38। तो आपका जो टोटल आंसर आएगा 0.88 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2-11 सॉल्व हो गया, 2011 सॉल्व हो गया। उसके बाद आप देखें 2012 में यहाँ पे भी हमने वही 0.50 की डिविडेंड देना है, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी अमाउंट 1.10 से बढ़ी तो 0.30 बढ़ी, कितनी अमाउंट 1.10 से बढ़ी हुई है 0. इसका 60% आपने एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका 60% जो आपकी अमाउंट आएगी ना वो आपकी तकरीबन आएगी 0.28। तो 0.28 will be the extra dividend that you have to pay, 0.78 will be your answer. So that is the end of your problem 14-8. In 14-9 we will 14-9 will be discussed in the next video. Till then, Allah Hafiz. Thank you.